So now, good morning to everyone. Let's continue with chapter number 9, lesson number 1 minute. There is. So students, in our last class, we started the addition of rational numbers. So now come to exercise 9.2. We will cover the questions from exercise 9.2 and the similar questions you are having in try these. Fine. So then we will do the exercise. Then you will be able to try these also. Before starting exercise 9.2, I want to introduce one term. I think that you have done earlier also. There is one term, additive inverse. Additive inverse. Additive inverse क्या होता है? If we have suppose a positive number, 1 minute. Now see बेटे, if we are having a number suppose 9, then its additive inverse is -9. And suppose we are having a negative number 11 means -11, then its additive inverse is 11. So a negative number additive inverse is positive, and if the number is positive, its additive inverse is negative number. Same number with opposite sign. It is written in your book, so you have to understand and you have to remember this thing. MCQ में आते हैं ऐसे question. The additive inverse of 7 is this. तो आपको पता होना चाहिए it is -7. Yes, आकृति बोलो. Unmute and speak up. Exercise 9.2, first question, first part, 5/4 plus minus -11/4. 4 LCM. If the LCM and denominator is same, then we write numerator as it is. हाँ जी बोलो क्या बात है? मिष्टी क्यों अनम्यूट कर रहे हो बच्चे आप? So 5 minus 11 is 11 minus 5 6. Minus का -6/11 is the answer. Note down quickly. Everyone try this part, then I will discuss. Here you can see the denominators are different, so you need to make the denominator same. Now who will tell me the answer for this question? थोड़ा ऊंची बोलो. You people don't understand once, so now I will remove that option. Hanji, raise your hand. Who will tell me the answer for this? No one? Only Suhana? Yes, Suhana. 17/30. दोबारा बोलो. 17/30. Let's see. Look here, everyone, beta. There is one negative rational number, one positive. आपने इसको ऐड करना है. You see the denominator are different. So you will take the LCM. LCM will be 30. जब आप LCM लोगे, LCM आएगा 30. Now 30 divided by 10. और you can say 10 के टेबल में 30 कहाँ आएगा? 3 पे. So 3 मल्टीप्लाई बाय -9. ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बार बार नहीं करूंगी, एक बार करके दिखा देती हूँ. 15 के टेबल में 32 पे 2 × 22 -27
plus 44 over 30. Now 44 is negative, 27 positive, 27 is negative. माइनस करेंगे 44 में से 27 माइनस करेंगे बेटा, आपके पास आएगा 17. 17 over 30 positive. Why? Because 44 is bigger and it is having positive sign. So the answer is 17 over 30. Next, fourth part, minus 3 over minus 11 plus 5 over 9. Now look here beta, everyone on the board. In this question, you can see that in this one rational number you have two negative signs. दोनों जगह नेगेटिव है, ऊपर नीचे, तो ये कट जाते हैं. What we are left with 3 by 11 plus 1 over 5 over 9. LCM is 99. 11 के टेबल में 99 किस पे आएगा? 9 पे. 9 3 जा 27 प्लस 9 के टेबल में 99 11 पे. 11 into 5 is 55. So the answer is 82 over 99. Now we will do the fifth part. Minus 8 by 19. Thank you, Nirmala ji. Thank you. Now look here, बच्चे. First of all, you can see you are having two signs together. उसको एक single sign बनाएंगे. Minus 8 by 19 plus minus 2 by 57. Now the LCM of 19 and 57 is 57. 19 is a prime number, 19 is a 57. तो दोनों का LCM क्या आएगा? 57. नहीं ऐसे orally आता तो करके देख सकते हो. 19 के टेबल में 57 3 पे. So 3 into minus 8. 8 3s are 24 minus 24. Then again minus sign. 57 के टेबल में 57 मान पे 1 2s are 2. क्योंकि ये माइनस तो पहले लगा दिया है. 1 into minus 2 is minus 2. जैसे मर्जी समझिए. Both the integers are negative. बोथ ये ऊपर वाले 24 plus 2 is 26. दोनों नेगेटिव होते हैं तो ऐड हो जाते हैं. Minus 26 over 57 is the answer. So rest of the parts you will do yourself. Yes, Sanchit. मैम आपकी मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही. बेटा माइक लगाया हुआ है, वॉल्यूम फुल है, आ जाएगी क्लियर. आप अपना नेट देखो, स्पीकर देखो समटाइम्स, और पूछ लेती हूँ किसी को प्रॉब्लम है तो. नो मैम. यस कनव. मैम मैंने पूछना था, जैसे पीछे एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -10 एंड -20. तो मैम हम जब रैशनल नंबर लिखेंगे तो हमको सीरियल ऑर्डर वाइज लिखना है कि हम कोई भी लिख सकते हैं? -11 -5. पहले तो पता क्या होता है बेटे, -10 और -20 के बीच में -5 नहीं आएगा. ठीक है, तो ये जरूरी नहीं होता कि सीरियल ऑर्डर में लिखो, लेकिन कोशिश यही करो कि सीरियल ऑर्डर में लिखो, फिर उससे में गलती नहीं होती. जैसे अगर आपके पास है -10 और -20, -20 हमारा इधर आएगा ना,
तो आपको पता है कि बीच में कौन से नंबर आएंगे, -11, -12, -13 so on up to -19. So better it is to write in serial order. बीच बीच में से क्यों लिखने हैं, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू मैम. To write -11, then -13, then -19. Write in serial order and make it simple. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन करेंगे बेटा. Now see the first part. 7 by 24 minus 7 by 17 by 36. Again this is very easy. What you will do? Subtraction है, आप दोनों 24 और 36 का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे. Let us do LCM of 24 and 36. 2 12s are, 2 18s are. What is the LCM? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72. LCM is 72. Up to 72 divided by 24. और in other way we can say 24 के टेबल में 72 कहाँ पे आता है? 3 पे. 3 7s are 21. 36 में 72 कहाँ आता है? 2 पे. 2 17s are 30. 34 माइनस माइनस का है, ये पॉजिटिव का है तो माइनस होगा. सो आंसर इज -13/72. Second part I will just discuss. I will not do. बस एक बार देख. Hurry up, do this, then I will discuss the second part. I hope everyone has done this. सेकेंड पार्ट में देखो बेटा, ये माइनस माइनस है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ऐसे माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस एंड यू विल गेट 5 by 63 plus 6 by 21. नाउ इट इज वेरी इजी टू टेक द एलसीएम एंड टू सॉल्व. दो साइन अलग अलग है, उनको इकट्ठा कर दिया. माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस. दैट यू आर गोइंग टू डू योरसेल्फ. I will discuss the third part. -6 by 13 minus -7/15. -6 by 13 minus minus plus 7 by 15. I hope it is clear. अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस. Now what is the LCM of 13 and 15? 13 is a prime number. Yes. If one number is prime, other number is not prime, तो LCM क्या होता है? दोनों का प्रोडक्ट. LCM is 195. 195 is the LCM. बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे. अब 13 के टेबल में 195 किसके आता है? ऑब्वियसली 15 पे. 15 into 6. 15 6 are 90 minus 90 plus 15 के टेबल में 195 किसके आता है? 13 पे. 13 7s are 91. One number negative, other number positive. So the answer is 1/195. Rest part you will do yourself. Fifth part में जैसे mixed है. Look in the book everyone. Fifth part. -2 1/9 -6. तो इसको आप क्या करोगे?
2/9 को सॉल्व करोगे, इधर देखो बेटा मिक्स वाला, -2/9 -6. In this part, let us do one negative mixed rational number question also. इसमें आपने ये माइनस साइन लिखना ही लिखना है और इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि -2 × 19 -18 +1 -17, ऐसे नहीं करना। While solving this mixed fraction, you are not to see this minus. This minus is with this rational number, ये अलग है, इसको लिखना ही लिखना है। 2 9s are 18, 18 + 1 -19/9 it will be. ठीक है? Like in this first question also, you are having the mixed rational number -2 1/3 + 4 3/5. इसमें भी ये माइनस साइन है। मिक्स्ड को आपने जब सॉल्व करना है तो माइनस को साथ लेके नहीं चलना, ठीक है? माइनस अलग है। 2 3 6 + 1 7/3। ये नहीं करना कि -6 + 1 -5/3, दैट विल बी टोटली रॉन्ग, ठीक है? अगर माइनस में मिक्स फ्रैक्शन है तो माइनस लिख दिया और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके जो भी आएगा। यस संचित। मैम ये मिक्स फ्रैक्शन वाला मैम निकला है? ये बेटा आपका होमवर्क है, मैंने आपको समझाया है कि ओके मैम। अगर माइनस में मिक्स फ्रैक्शन होती है तो माइनस लिखकर सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, जैसे हम यूजुअली करते हैं। 2 9s are 18, उसमें अब ऊपर वाला नंबर प्लस करना है, माइनस को लेकर मल्टीप्लाई नहीं करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना। आई होप इट इज क्लियर। नाउ प्रोडक्ट इज वेरी इजी। Always whatever rational number are given to you, you have to multiply it. अगर कटिंग होती है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के साथ या डायगोनली दूसरे रैशनल नंबर, एक के न्यूमरेटर और दूसरे के डिनोमिनेटर के साथ आप कटिंग कर दोगे। If two negative sign are get there in multiplication, the answer will be positive. If one negative sign, answer will be negative. Means if negative sign is getting multiplied even number of times, answer is positive. अगर ऑड है तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं बेटा, इसमें हम 9/2 into -7/4. Now you can see no cutting is possible. तो कटिंग पॉसिबल नहीं है ना 2 9 से कटता है, ना 2 7 से, ना 4 7 से, ना 4 9 से। So you will do multiply. 7 9s are 63 माइनस, इसको आपने अगर मिक्स में करना कर लो, 7 7/8, बट मिक्स में करना जरूरी नहीं है, ठीक है? 6th पार्ट 3/-5 into -5/3। ये माइनस माइनस कट गया, 5 5 कट गया, 3 3 कट गया, आंसर इज 1। So product is very easy. All the rest of the parts you are going to do yourself. Second part में देखो, जैसे -9 है तो ये जो -9 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? न्यूमरेटर से, 3 से। सेकेंड पार्ट -9 will get multiplied with 3 because -9 means -9/1। अब बोर्ड पे देखो, सपोज ऐसे है क्वेश्चन, 3 नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? -7/4 मल्टीप्लाई -3/-8। तो आप क्या करेंगे? ऊपर नीचे नेगेटिव है, काट दो, क्या बचा? -7/4 into 3/8। सो आंसर इज -21/32। ठीक है? या ऐसे भी कर सकते हो, -7 into -3 is 21, सीधा 21/-30। नेगेटिव एक बार आना है, चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, चाहे से काट दो चाहे मल्टीप्लाई करके,
यस नित्या। मैम ये वाला फिर से समझा दो मैम, समझ नहीं आई। बेटा इसमें क्या है, आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने अपनी तरफ से लिया। इसमें 3 नेगेटिव थे, -7/4 इंटू -3/-8। अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया है जिसमें ऐसे था, ऊपर नीचे नेगेटिव थे तो आपने काट दिया था, है ना। तो चाहे आप इसका नेगेटिव नेगेटिव यहीं पे काट दो, ऐसे काट दिए, क्या बचेगा -7/4 इंटू 3/8। फिर सॉल्व कर लो। और अगर आपने नहीं काटना तो -7 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 7 3 आर 21 एंड 4 8 आर 32, साथ में माइनस। ठीक है, अब क्वेश्चन में 3 नेगेटिव थे, 3 मींस ऑड, तो आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। -4 फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय 2/3। -4 मीन्स बेटा -4/1। यस भव्या। एक्सक्यूज मी मैम, जब हमने इक्विवेलेंट मतलब कि हमें ढूंढना होता है कि कौन सा एक फ्रैक्शन बड़ा है। मिनट भव्या, दोबारा बोलो। मैम जब हमने ढूंढना होता है कि मैम कौन सा फ्रैक्शन कौन सा नंबर बड़ा है, तो मैम जो साइन जब नीचे लगा होता है उसको ऊपर रखना होता है। अगर एक नंबर में, एक रैशनल नंबर में ये है तो उसको ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेटर में। ठीक है ना, लेकिन हमारे मैम पास जैसे अगर हमने कुछ सॉल्व करना है तो हम नेगेटिव साइन ऊपर ही लिखते हैं। ओके मैम। और मैम अगर नीचे रखे तो मैम आंसर अलग आता है, अगर जब वही वाला ऊपर जाता है तब भी अलग आता है। भव्या क्वेश्चन सॉल्व करके फोटो भेजना बेटे, दोनों तरह से। ओके मैम। ठीक है, देन आई विल टेल यू। मैम ठीक है। देन आई विल डिस्कस दैट इन क्लास आल्सो, दैट व्हाट इज द डिस्क्रिपेंसी। आप आज भेजना, मैं कल डिस्कस कर लूंगी। So beta, you all know that whenever there is division sign, what we have to do? पहला रैशनल नंबर एज इट इज लिख के डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एंड व्हेन वी चेंज डिवीजन इनटू मल्टीप्लाई, उससे अगले वाले नंबर का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 2 2 जा 4, आंसर इज -6। Note down quickly. Next, second part, third part. See बच्चे, -4/5. When you are having a single number, it means उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1. -3 means -3/1. डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको आपने लिख दिया 1/-3। आप ये नेगेटिव ऊपर भी छोड़ सकते थे, -1/3 भी लिख सकते थे, बट चलो हम उसी तरह से करते हैं 1/-3। Now no cancellation is possible. -4 into 1 is -4. 5 into -, अब ये देखो, ये माइनस माइनस आप इस स्टेप में भी काट सकते हो। एक नेगेटिव ऊपर है, ये 2 नेगेटिव है, काट दो। नहीं तो 5 3 का 15, -15 बाद में काट दो। इट इज योर विश, चाहे पहले काट के 4/15, चाहे बाद में काट के। See this sixth part, -7/12 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 13/-, कोई कटिंग पॉसिबल नहीं है, ये माइनस इसके साथ काट दो,
ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस अल्टीमेटली क्या होता है प्लस, तो इस तरह से आप कट कर सकते हो। जब हमारे पास ऐसे था -3/-a हम कट करते हैं ना, तो चाहे अगर माइनस इधर है और मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस नहीं मल्टीप्लाई, तो कट कर सकते हैं। 91/24 इज द आंसर। So rest of the parts you are going to do yourself. इसके जो ट्राई दीज हैं बेटे, वो आपने अपनी रफ में रिवाइज कर लेने हैं, पेयर में नहीं करने की जरूरत। So all the try these now you can do yourself as we have done the questions of the exercise. इसी बुक के सबसे ऊपर देखो 9.2 पे सबसे ऊपर ट्राई दीज देखिए बेटा, पेज 190, -6/7 × 5/7। अब डिनोमिनेटर सेम देख के गलती से एलसीएम नहीं ले देना। Then there is multiply sign, then you have to multiply. The answer will be -30/49. कि डिनोमिनेटर सेम देखे तो चलो एलसीएम ले दिया, नो, you have to see the sign between two rational numbers. Fine students, so with this we have finished chapter number 9, rational numbers. Tomorrow we are going to start the new chapter. Chapter number 13, exponents and parts, we will start, I think. I'll check the syllabus again. Any doubt to anyone regarding this chapter? हाँ जी हरजीत। Yes, ma'am. Ma'am, I want to ask the timings for the test tomorrow. What you want to ask? मैम जो कल टेस्ट है मैथ्स का, तो उसकी टाइमिंग्स क्या है? टेस्ट की टाइमिंग्स पहले मैम जो शाम को थी ना बेटा, पहले भी शाम को थी 5 बजे शायद। यस मैम। मुझे लेट मी कंफर्म। ओके मैम। इवनिंग ओनली 5 और 5:30 जो भी आपका पहले का टाइम था, बट आई विल सेंड द मैसेज अगेन। ओके मैम। All right students, now see you tomorrow. Take care.